کیا آپ نے کبھی غور کیا ہے؟ ہمارے زندگی کی سب سے بڑی جنگیں باہر نہیں بلکہ ہمارے اپنے ہی اندر لڑی جاتی ہے۔ ہم اس دنیا کو بدلنے کے نکلتے ہیں مگر اپنے ہی وجود کی سچی حقیقت سے انجان رہ جاتے ہیں۔ محترم ناظرین، دی سٹل وائس میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ آج ہم ایک ایسے سفر پر نکلنے والے ہیں جو آپ کے دل کی گہرائیوں کو چھو لے گا کہ آپ اپنے اندر جھانکیں اور اس آواز کو سنیں جسے دنیا کے شور نے کہیں دبا دیا ہے۔ ذرا سوچئے، ہم سب زندگی کی دوڑ میں اس طرح بھاگ رہے ہیں جیسے منزل بس ایک قدم کی دوری پر ہو۔ ہم کامیاب ہونا چاہتے ہیں، سکون تلاش کرتے ہیں، خوشیوں کی چاہ میں در در بھٹکتے ہیں، مگر کیا واقعی ہم جانتے ہیں کہ ہم کون ہیں اور ہماری اس کائنات میں آمد کا مقصد کیا ہے؟ آج جس شاہکار کتاب کا احوال ہم لے کر آئے ہیں وہ کوئی عام کتاب نہیں ہے، یہ روح کا آئینہ ہے، ایک ایسا فلسفہ ہے جس نے لاکھوں انسانوں کی زندگیوں کو بدل کر رکھ دیا۔ یہ کہانی ہے ایک ایسے انسان کی جو خوابوں کی تلاش میں صحراؤں کی خاک چھانتا ہے اور پاتا ہے کہ جو خزانہ وہ باہر ڈھونڈ رہا تھا وہ تو اس کے اپنے ہی دل میں دفن تھا۔ کیونکہ اگلے 1 گھنٹے میں ہم زندگی، محبت اور اپنی ذات کی پہچان کے ایک ایسے سفر پر جانے والے ہیں جو آپ کو اندر سے ہلا کر رکھ دے گا۔ آج کی ہماری زیر بحث کتاب دنیا کے مقبول ترین اور با اثر ترین فکشن ناولز میں سے ایک ہے اور اس کا نام ہے دی لٹل پرنس، جسے فرانسیسی زبان میں ایلی پیٹی پرنس کہا جاتا ہے، اور اس کے مصنف کا نام اینٹوان دی سینٹ ہے۔ اینٹوان دی سینٹ صرف ایک لکھاری نہیں تھے بلکہ وہ ایک نڈر پائلٹ، ایک شاعر اور ایک فلسفی بھی تھے۔ وہ آسمانوں کی وسعتوں میں اڑنے والے انسان تھے جن کی زندگی خود کسی سنسنی خیز کہانی سے کم نہیں تھی۔ جن عظیم دوم کے دوران جب دنیا اندھیرے میں ڈوب رہی تھی اور انسانیت کرا رہی تھی، اس حساس انسان نے قلم اٹھایا اور ایک ایسی کتاب تخلیق کی جو بچوں کے لیے بھی ہے اور بڑوں کے لیے بھی، بلکہ سچ تو یہ ہے کہ یہ کتاب صرف ان بڑوں کے لیے ہے جو اپنے اندر کے بچے کو زندہ رکھے ہوئے ہے۔ یہ کتاب سن 1943 میں نیو یارک میں لکھی گئی اور شائع ہوئی۔ اس وقت مصنف شدید ذہنی دباؤ اور جلاوطنی کی زندگی گزار رہے تھے کیونکہ ان کا پیارا وطن فرانس نازی قبضے میں تھا۔ وہ اپنی جنگی پروازوں کے دوران زخمی بھی ہو چکے تھے اور تنہائی کا شکار تھے۔ ایسے عالم میں انہوں نے امریکہ کے ایک ہوٹل کے کمرے اور ساحل سمندر کے قریب بیٹھ کر کاغذ پر اپنے اندر کے غم اور انسانی فطرت کے سچ کو انڈیل دیا۔ یہ کتاب محض ایک کہانی نہیں ہے بلکہ یہ ایک جنگ زدہ دنیا میں محبت اور معصومیت کی بازگشت تھی۔ آئیے اب اس دل کو چھو لینے والی کہانی کے سفر پر چلتے ہیں۔ کہانی کا راوی ایک پائلٹ ہے۔ اس کا ہوائی جہاز صحرائے اعظم کے درمیان ایک تکنیکی خرابی کی وجہ سے گر کر تباہ ہو جاتا ہے۔ اس کے پاس پینے کے پانی کے لیے صرف چند دن ہیں اور وہ اکیلا موت کے منہ میں کھڑا اپنے جہاز کی مرمت کر رہا ہے۔ اچانک صبح کے وقت ایک عجیب و غریب اور سحر انگیز واقعہ پیش آتا ہے۔ ایک ننھا سا بچہ جس کے بال سنہری ہیں اور جو ایک خوبصورت شاہی لباس پہنے ہوئے ہے، اس کے سامنے ظاہر ہوتا ہے اور کہتا ہے۔ وہ بچہ نہ تو صحرا کی ہولناکیوں سے خوفزدہ ہے اور نہ ہی اسے پانی کی کمی کی کوئی فکر ہے۔ پائلٹ کو آہستہ آہستہ پتہ چلتا ہے کہ یہ ننھا شہزادہ کسی اور سیارے سے آیا ہے جسے زمین والوں کا بھی 612 کا نام دیا گیا ہے۔ اس کا سیارہ اتنا چھوٹا ہے کہ وہاں ایک دن میں کئی بار سورج غروب ہوتے دیکھا جا سکتا ہے، اور وہاں 3 چھوٹے چھوٹے آتش فشاں ہیں جن میں سے 2 فعال ہیں اور ایک بند، اور وہاں ایک اکھڑ مزاج مگر انتہائی حسین گلاب کا پھول کھلتا ہے جس سے اس ننھے شہزادے کو شدید محبت ہوتی ہے۔
मगर मोहब्बत के इजहार और फहम की नापुख्तगी की वजह से शहजादा अपने इस छोटे से सैयारे को छोड़कर कायनात के सफर पर निकल पड़ता है ताकि जिंदगी और रिश्तों के मानी समझ सके। वो मुख्तलिफ सैयारों का सफर करता है और रास्ते में अजीब व गरीब किरदारों से मिलता है। पहला सैयारा एक गरूर बादशाह, जो दावा करता है कि वो पूरी कायनात पर हुक्मरानी करता है, हालांकि इसकी सल्तनत में इसके सिवा कोई नहीं होता। ये इंसान की इस कमजोरी को जाहिर करता है, जो ताकत और इख्तियार के झूठे खुमार में जिया करता है। दूसरा सैयारा एक खुद पसंद शख्स, जो सिर्फ ये चाहता है कि हर कोई इसकी तारीफ करे और इसे सबसे बेहतरीन माने। तीसरा सैयारा एक शराबी, जो शराब इसलिए पीता है ताकि वो शर्म को भुला सके, और शर्म इस बात की होती है कि वो शराब पीता है। ये इंसान की कमजोरियों के इस शैतानी चक्कर को जाहिर करता है, जिससे वो निकल नहीं पाता। चौथा सैयारा एक ताजिर, जो दिन रात सितारों को गिनने और उन्हें खरीदने में मसरूफ रहता है, ये सोचकर कि वो उनका मालिक है। वो इतना मसरूफ है कि इसे ये तक याद नहीं कि इसके पास जीने का वक्त ही नहीं है। पांचवा सैयारा एक जलाने वाला शख्स, जो एक छोटे सैयारे पर दिन में 1000 बार चिराग जलाता और बुझाता है, क्योंकि उसूल यही है, जहां इंसान मकसद भूलकर सिर्फ अमल करता जाता है। छठा सैयारा एक बूढ़ा जोग्राफिया दान, जो बड़ी बड़ी किताबें लिखता है मगर खुद कभी सफर नहीं करता, क्योंकि इसके नजदीक किताबों का इल्म तजर्बे से ज्यादा अहम होता है। इन तमाम सैयारों से गुजरता हुआ ये नन्हा शहजादा आखिरकार जमीन पर उतरता है। जमीन पर इसे एक नहीं बल्कि हजारों गुलाब के फूल एक ही बाग में मिल जाते हैं, जिससे इसका दिल टूट जाता है, क्योंकि वो समझता था कि इसका फूल कायनात में वाहिद और खास है। फिर इसकी मुलाकात एक लुमड़ी से होती है। ये इस किताब का सबसे ताकतवर और रूहानी मोड़ है। लुमड़ी नन्हे शहजादे को एक ऐसा राज सिखाती है जो पूरी इंसानियत के लिए एक रोशन चिराग है। लुमड़ी कहती है, तुम मेरे लिए इस दुनिया के लाखों बच्चों जैसे लड़कों में से सिर्फ एक हो, और मैं तुम्हारे लिए हजारों लुमड़ियों में से सिर्फ एक हूं। लेकिन अगर तुम मुझे पालतू बना लोगे, यानी मुझसे ताल्लुक जोड़ लोगे, मुझ पर वक्त लगाओगे, तो हम एक दूसरे के लिए पूरी दुनिया में अकेले और खास हो जाएंगे। और फिर लुमड़ी वो मशहूर जमाना जुमला कहती है, जो तारीख का हिस्सा बन चुका है। इंसान सिर्फ अपने दिल से देखता है, असल चीज आंखों से दिखाई नहीं देती। शहजादा ये सीखता है कि जिस चीज ने इसके फूल को इतना खास बनाया था, वो वक्त था जो उसने इस पर सिर्फ किया था। नाजरीन, ये किताब महज एक ख्याली कहानी नहीं है, बल्कि ये जिंदगी के गहरे हकायक का निचोड़ है। आइए इस किताब से मिलने वाले चंद अहम तरीन पैगामात और असबाक को अपने दिल में उतारते हैं। मुसन्निफ किताब के शुरू में ही कहता है कि सारे बड़े पहले बच्चे थे, मगर बहुत कम लोगों को ये याद रहता है। हम बड़े जब बड़े हो जाते हैं तो हम चीजों की गहराई में जाने के बजाय सिर्फ नंबर्स, दौलत और जाहिरी शान और शौकत को देखना शुरू कर देते हैं। हम पूछते हैं, इसकी तनख्वाह कितनी है, इसका घर कितना बड़ा है, जबकि बच्चे ये पूछते हैं, इसके फूल का रंग कैसा है, वो किस चीज से खुश होता है। जिंदगी की असल खूबसूरती उन चीजों में है जिसे दिल महसूस करता है, ना कि वो जो तराजू में तोली जा सके। आज की इस मादियत परस्त दुनिया में हम हर चीज को इस्तेमाल करने और फेंकने की आदत डाल चुके हैं। लोग भी हमारे लिए इस्तेमाल की अशिया बन चुके हैं। लेकिन लुमड़ी का ये सबक, तुम उसके जिम्मेदार हो जिसे तुमने पालतू बनाया है, हमें यह सिखाता है कि मोहब्बत और दोस्ती कोई इत्तेफाकी चीज नहीं है। यह वक्त मांगती है, तवज्जो मांगती है। जब आप किसी को अपना वक्त देते हैं
तो आप उसके साथ एक अनमित रिश्ता जोड़ लेते हैं। किसी का दिल जीतना या किसी के साथ जुड़ना एक जिम्मेदारी है। नन्हा शहजादा जब जमीन के गुलाबों के बाग में जाता है तो वो उदास हो जाता है कि इसका फूल कोई अनोखा नहीं है, मगर लोमड़ी इसे समझाती है कि इसका फूल इसलिए खास है क्योंकि इसने इस पर पानी डाला है, इसकी देखभाल की है, इसकी कीड़े मकड़ों से हिफाजत की है और उसकी शिकायतें सुनी हैं। जाहिरी तौर पर दुनिया में हजारों चीजें खूबसूरत हो सकती है, लेकिन आप जिस चीज या इंसान को अपना वक्त और मोहब्बत देते हैं वही आपके लिए कायनात में सबसे कीमती बन जाती है। हम सब जिंदगी की इस अंधी दौड़ में मसरूफ हैं, जहां हम ट्रेन की खिड़कियों से बाहर देखने के बजाय बस घड़ी की सुइयों को देखते हैं। ताजिर सितारों को गिनता रहता है क्योंकि वो समझता है कि वो अमीर हो रहा है, मगर वो उन सितारों की रोशनी से लुत्फ अंदोज नहीं होता। किताब हमें याद दिलाती है कि दौलत, कामयाबी और शोहरत की इस पागल दौड़ में कहीं हम अपनी रूह को ना खो बैठें। खुशी बड़ी बड़ी इमारतों में नहीं, बल्कि अपनों के साथ बैठे दो पिल और फितरत के हसन को महसूस करने में है। अब कहानी के आखिरी मरहले की तरफ आते हैं। नन्हे शहजादे को अपने सैयारे और अपने फूल की याद सताती है। वो वापस जाने का फैसला करता है। इसके लिए इसे एक जहरीले सांप की मदद लेनी पड़ती है, जो मौत की अलामत है, ताकि वो अपनी इस भारी जिस्मानी कैद से आजाद होकर अपने हल्के फुल्के सैयारे और अपने फूल तक वापस पहुंच सके। पायलट जब अपने जहाज की मुरम्मत कर लेता है तो वो देखता है कि नन्हा शहजादा जमीन पर नहीं है। वो जान जाता है कि वो अपने सैयारे पर वापस लौट गया है, और जब भी पायलट रात को आसमान की तरफ देखता है तो इसे ऐसा लगता है जैसे सारे सितारे हंस रहे हों, क्योंकि वो जानता है कि इसका एक खास दोस्त किसी एक सितारे पर मौजूद मुस्कुरा रहा है। मेरे अजीज दोस्तों, नाजरीन, दी सटिल वॉइस, ये कहानी आप और मुझसे जड़ी है। हम सब अपने अपने सैयारे से इस दुनिया में आए हैं कि आपके दिल को इस किताब के किस जुमले ने सबसे ज्यादा झंझोड़ा है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अगली वीडियो तक अपने अंदर की सच्ची आवाज को सुनते रहिए। खुदा हाफिज।